the injunctions of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats. All those members in favor of the motion may rise on their seats. Count be made. میں نے یہ کہا ہے now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise. Favor کون سے موشن؟ آپ کی امینڈمنٹ کے موشن. میں پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be referred to the Council of Islamic Ideology for advice whether the bill is repugnant to the injunctions of Islam. Now I put the motion to the House. All those members in favor of the motion may rise in their seats and count be made. تشریف رکھیں جی. جی 41 کوئی فرق نہیں پڑے گا. 41 members rose in favor of the motion. Consequently, the motion is rejected, being less than the vote of 1/4 of the total membership of the Assembly in favor of, that is 84 MNA. Now I put the second amendment by Alia Kamran Sahiba. It has been moved that the Anti-Terrorism Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be referred to the Select Committee. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, amendment is rejected. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of کے خلاف نیب قوانین بنائے گئے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ کبھی کسی قانون دان نے یا کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اس تمام تر تاریخ اور اس تمام تر ماضی میں اس تمام تر قانونی چاراجوئیوں میں اس نقطے کو کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے. پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے. حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ اس کا نشانہ صرف پاکستانی قوم کو کس طرح بنا دیا گیا ہے. اور پھر ہماری طرح کے کچھ کمزور ممالک، ترقی پذیر ممالک، ان کے کچھ حوالے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ قانون فلاں ملک میں ہے. کوئی غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ کتنے ممالک ہیں دنیا میں کہ اسی طرح کی غلط قانون سازیوں اور عدالت کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے قانون اور ہمارے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جا سکتے. ان عدالتوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، ان پارلیمنٹوں نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں. ایک شخص کو گرفتار کیا گیا،
खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर अपने गांव से 15-16 किलोमीटर दूर और लगा दिया कि जी इसके घर से असलहा पकड़ा गया। भाई तुम घर में गए नहीं हो, तुमने 16 किलोमीटर दूर उसको पकड़ा है, एक दुकान में पकड़ा है उसको, घर से बरामद हो गया असलहा। इस तरह की झूठ बोले जाते हैं। हमने वो मिसालें भी देखी हैं कि उन्होंने बताया, आपका आलिया सर आपको पहले भी बोलने दिया, अब आप फिर बात कर लीजिए। उन्होंने अपोज किया है। जी बताइए। एक आलिया साहबा का पहले आप हमारे मेंबरान का हक इस तरह से खा लेते हैं 288 लाकर, रूल्स को मुअत्तल करके। सर उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर एक अमेंडमेंट बंदा खुशकिस्मती से एक दिन पहले जमा करवा ही देता है तो सर उसका कोई राइट नहीं है कि वो यहाँ पर बात कर सके। आपको पहले सर मैं बात करने पे आ जाती सर, मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। सर यहाँ पर बात हो रही है, मैं बात करूंगी सर आर्टिकल 9 की सबसे पहले। सर हम जश्न आज़ादी का सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। सर आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और आइन का जो आर्टिकल है सर, ये हमारी आज़ादी को, गारंटेड आज़ादी को सर, ये हमें वो तक प्रोटेक्ट करता है। सर इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक्सीड कर रहे हैं सर इस आर्टिकल से। सर इसमें आज़ादी जो सर बाज़ का बहुत सारे अहम मामलात में जो है बहुत अहमियत रखती है और ये बहुत अहम है, एक मुकद्दस चीज़ है जिसको जो आप वायलेट करना जा रहे हैं। शक की बुनियाद, नहीं सॉरी, शक नहीं सर, एक बहुत माकूल शक जो है, माकूल जवाज सर, वो नाम दिया ना आपने इस चीज़ को, माकूल शख्स और माकूल जवाज की बेस पर सब इंसानी हुर्मत को सर आप वायलेट कर रहे हैं। सर दुनिया भर में जुर्म होता है, उसके ऊपर पहले तस्दीक की जाती है, तफ्शीश होती है, फिर सर उसको सजा देते हैं। हमारा उल्टा है कि पहले पकड़ लो, फिर उसके ऊपर जो तफ्शीश करेंगे और फिर जो है ना उस बंदे को, और फर्ज करें अगर जो सर वो माकूल शक जो था वो सही नहीं हुआ तो उस डिटेंशन का सर हिसाब कौन देगा। सर जहां तक मेरी अमेंडमेंट्स का सवाल है, पहली अमेंडमेंट की बात ये करूं कि उस कमेटी में आपकी जो है ये काबीना की सर ये जो कमेटी है इंटीरियर की, इसमें हमारा कोई जमात की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। तो मेरी अमेंडमेंट इसलिए थी कि इसको आप एक सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दीजिए ताकि हमारी जमात की नुमाइंदगी हो जाए। या जो कुछ इस तरह के बिल होते हैं जिसमें आप समझते हैं कि कोई ज़रूरत ही नहीं हमारे, तो सर मेहरबानी करके हमें बुला लिया कीजिए ताकि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं। दूसरा सर मेरी अमेंडमेंट थी कि इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाया जाए। क्यों भिजवाया जाए सर, यहाँ पर मैं बात करूंगी आर्टिकल सर 227 का सर मैं हवाला दूंगी कि जिसमें कहा गया है कि आइन और कानून के मुनाफी जो है, इस्लाम और कुरान के मुनाफी सर कोई सुन्नत के मुनाफी कोई कवानीन नहीं बनाए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि कवानीन को इस्लाम और के मुताबिक हम आहंग किया जा सके। सर उसकी वायलेशन है, उसकी वायलेशन इसलिए है कि इस्लाम और अल्लाह का कानून ये कहता है कि अगर किसी शख्स के जहन में ये चीज़ आ जाए, ख्याल कि वो गुनाह करने जा रहा है और वो उसका इजहार अपने अल्फाज से भी करता है लेकिन वो गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ, तो उस वक्त तक सर वो मुजरिम नहीं होगा, वो सज़ा का मुर्तकिब नहीं होगा, उसको सज़ा नहीं दी जा सकेगी। तो सर इसलिए मामला जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भिजवाना चाहिए। और सर ये बात भी बताती जाऊँ कि जो कानून में पाकिस्तान की तारीख है कि जो कानून बनते हैं ना सर, इप्लाई उन्हीं पे होते हैं जो कानून बनाते हैं। तो ये ज़रा सोच समझ के कानून बनाएं सर, ये हिस्ट्री रही है। और सर इस पे बार बार गुजारिश करूंगी कि आपसे हम लोग ये तवक्को करते हैं कि आप यहाँ पे तमाम मेंबरान को बोलने का राइट देते हैं। तो सर इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगी कि आप हमें टाइम दिया कीजिए। शुक्रिया जी। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब स्पीकर, ये तो माहिर क़वानीन जाने के आज जो तरमीम लाई जा रही है उसकी कानूनी ज़रूरत कितनी है और कितनी नहीं, या है भी और नहीं। लेकिन इस किस्म की जो कानून साजियाँ हैं जनाब स्पीकर, इसका एक अपना पस मंज़र भी है, इसकी माजी भी है और तवील माजी है। दहशतगर्दी के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग